Good morning, students. Today's class is fully about material control techniques. What is material control techniques? तुम बोलोगे सर तीन टाइप का कॉस्ट होता है. वन इज मटेरियल, सेकंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज एक्सपेंसेस. अब पहले मटेरियल की तरफ ही क्यों चल वैसे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मतलब ये सिंपली चीज है कि हमको मटेरियल कंट्रोल पहले क्यों पढ़ना है. ओके, देख लो, हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं. In a final product of rupees 100, around 70 to 75% is in material, 20 to 25% is in labor, and 5 to 10% is in expenses. Is because out of rupees 100, 70 to 75% of cost is material, so that we had to focus on that to minimize our cost, so that the cost will be decreases and profit will be increases. As today's market is in competition market, sale price cannot change of a single product. Okay, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? मटेरियल कंट्रोल हमको क्यों पढ़ना है? पहले हम लोग क्या डिस्कशन किए थे बताओ थोड़ा. तीन स्कोप होता था किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग का. फर्स्ट वन इज कॉस्ट एसेटेनमेंट. फर्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ascertainment. Second point is cost control. Third point is cost reduction. इसका सिंपली मतलब क्या है? Cost ascertainment is already we have discussed by applying cost sheet. Is that clear? Already how a cost of a product will be ascertained, then it is fully discussed in cost sheet. Okay, three types of material. One is material, second one is labor. Direct material is there, direct labor is there, direct expenses is there. Combinations of these three is known as prime cost. After that, all overheads are divided into three types. One is factory overhead, second one is office and administrative overhead, next one is selling and distribution overhead. By adding all these, we have to cost of productions, again cost of sales. All these after getting some profits or adding some profit in cost of sales, we will get sales. समझ में आ रहा है? तो हमारा by applying cost sheet or by preparation of cost sheet, we able to know the cost ascertainment concept is completed. After cost ascertainment, the main motto is our cost control. हमको क्या करना पड़ेगा? Cost को control करना पड़ेगा. Cost को control करने का मतलब है we have to control material, we have to control labor, we have to control expenses. Is that clear? So cost control is nothing but controlling of material, controlling of labor and controlling of expenses. Is that clear? तो बोलोगे फिर सर मटेरियल ने हमको क्यों पहले बोला आपने, लेबर क्यों सेकंड में बोला, एक्सपेंसेस क्यों थर्ड में बोला? So that in case of material, out of rupees 100 total cost, around 70 to 75% of total cost is on material, 20 to 25% is on labor, 5 to 10% is on expenses. So if I go to control or if I want to control, then my main focus is on 70 to 75%, because if I will control, then it will be it decreases to 60 to 65%. But in case of 20 to 25, it should not decrease to 10 to 15%. मतलब 70 so हमारे पास इतना ज़्यादा चीज़ है, हम थोड़ा सा निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगा. इतने से अगर हम बहुत निकाल देंगे, मतलब थोड़ा सा निकाल देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा. इसीलिए क्या बोल रहा है? As material is having around 70 to 75% of total cost, we have to control material first. As labor is containing 20 and 25% of labor total production or cost of production, we have to control on second. As expenses is containing 5 to 10%, we have to do some control on expenses, which we will discuss in overhead. The first point is, in case of material, it is the most expensive part of a product, having 70 to 75% of cost. हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा. At the time of purchase, at the time of storing, at the time of issuing, at the time of another thing, we have to discuss the material control technique. Listen,
Material control technique is different from labor control technique. Labor control technique is different from expenses control technique or overhead control technique. मैं ये क्यों बता रहा हूँ देखो, तुम बोलोगे सर कॉस्ट कंट्रोल में तो हम लोग को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद पढ़वाना था ना, हम लोग पढ़ना चाहिए था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्योंकि मैंने पहले बोला था इन केस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल वी हैव टू रीड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन केस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन वी हैव टू स्टडी मार्जिनल कॉस्टिंग। समझ, इतना तो याद होगा आप लोग को। So in case of standard costing का मतलब क्या होता है, थोड़ा अच्छे से देखो। अगर मैंने सोच लिया कि मेरा दो टाइप का चीज था, वन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या देखा कि मेरा मटेरियल मैंने सोचा था 15 रुपए का खर्चा होगा, अभी क्या हो गया 70 रुपए का खर्चा हो गया। तो दिस डिफरेंस बिटवीन 17 and 15 is rupees 2. We have to control these two by taking the material control techniques. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? So in case of cost accounting there are so many types of material control techniques are there in which I will apply my cost reduction technique. अच्छे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको हम अप्लाई करके हम कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, कॉस्ट को रिडक्शन भी कर सकते हैं, कॉस्ट को कम भी कर सकते हैं। ये बोलने का एक ही मतलब होता है कि आपको अगर आप लोग ये सब चीज फॉलो कर रहे हो तभी तुम्हारा कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर कॉस्ट कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कॉस्ट अकाउंटिंग का, व्हेन यू सेव सम कॉस्ट विल इंक्रीज और अर्न योर प्रॉफिट्स। तुम जितना कॉस्ट में सेव करोगे उतना प्रॉफिट पे कमाओगे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग आज क्या देखेंगे, मटेरियल कंट्रोल टेक्निक क्या क्या होता है, कौन सा मटेरियल कंट्रोल टेक्निक होता है, क्या क्या हमको अभी पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या कोर्स में, सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे। ओके So many types of material control techniques are there, out of which we have to study most important things. Material control technique. Is that okay? Material control technique. The first material most important thing is EOQ. Full form क्या है? Economic order quantity. We have to focus on that statement or on that word, order quantity. हमको कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना पड़ेगा, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करने से हमको फायदा होगा, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करने से हमको नुकसान होगा, ये कौन सा स्टेटमेंट से पता चलेगा, EOQ से पता चलेगा। मैंने आपको थोड़ा डिस्कशन करवाया था, एट द टाइम ऑफ टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस द मोस्ट टू एक्सपेंसिव आइटम देयर इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, दीस टू आइटम्स आर, वन इज, आपको याद है क्या क्या हमने माना था, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेकंड वन इज कैरिंग कॉस्ट। मतलब at the time of preparation of EOQ we have to focus these two costs. If this cost will be minimized, then automatically cost of ordering or cost of quantity order must be minimized. So that in EOQ we will discuss what is ordering cost, what is carrying cost, how ordering cost and carrying cost is effect to the ordering quantity. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना पड़ेगा सो दैट इट शुड बी इकोनॉमिक फॉर मी। फिर से बोल रहा हूं, मुझे कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना पड़ेगा सो दैट इट विल बी इकोनॉमिक्स फॉर मी, मुझे सस्ता पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, सस्ता। जनरली वर्ड में मतलब होता है सस्ता होता है। अगर इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखो, इको प्लस नोमिक्स इज द अनलिमिटेड wants with having limited resources, we have to comply the unlimited wants with limited resources, इसका मतलब होता है economics। but here we have to know, मतलब इसे बोल सकते हैं कि when decrease the cost or minimize the cost। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमको क्या करना पड़ेगा, कितना क्वांटिटी ऑर्डर देने से हमारा कॉस्ट ऑफ ऑर्डर डिक्रीज होगा और मिनिमाइज होगा। समझ में आ रहा है? ये चीज हम कहां पढ़ेंगे,
ईओक्यू में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? हम लोग क्लियरली सब चीज पढ़ेंगे। ये सब क्या है थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कशन करके बताता हूँ, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बोल के। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज perpetual inventory system. What is inventory system? आप लोग को पता होगा, inventory means stock. मुझे स्टॉक को कैसे मेंटेन करना पड़ेगा, कैसे इश्यू करना पड़ेगा, कैसे स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट का एडवांटेज क्या होता है, वो स्टेटमेंट का डिसएडवांटेज क्या होता है, all these matters will be solved by perpetual inventory system. Here we have to study two types of things. One is bin cards. आप लोग साइड में थोड़ा थोड़ा ये लिख के चलो तो आपको पता चल जाएगा हम लोग ईओक्यू में क्या पढ़ेंगे, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे। मैं भी साइड में लिखता हूँ। हाँ देखो इधर हमको क्या पढ़ना है, वन इज bin card, second one is stored ledger. bin card क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या था, इसका डिसएडवांटेज क्या था, क्यों हमको स्टोर्स लेजर मतलब प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। स्टोर्स लेजर में फिर चार चीज होता है, वन इज फीफो, नेक्स्ट वन इज लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। क्या क्या होता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा नॉर्मली हम लोग डिस्कशन करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इन केस ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम वी हैव टू क्लैरिफाई डिफरेंस बिटवीन bin card and stores ledger. What do you mean by bin card? What is the advantage of bin card? What is the disadvantage of bin card? Because of why to cross over the limitations stores ledger arises. stores ledger क्यों आया, उसका बेनिफिट क्या था, वो बेनिफिट में चार चीज आएगा। फीफो में करना पड़ेगा स्टोर्स लेजर, प्रिपरेशन ऑफ स्टोर्स लेजर by the method of FIFO or by the method of LIFO or by the method of simple average or the method of weighted average। कौन सा मेथड को फॉलो करके हमको स्टोर्स लेजर प्रिपेयर करवाना पड़ेगा, ये चीज में हमको कहां पढ़ना पड़ेगा, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में पढ़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का मतलब है मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा इन्वेंटरी कितना डेज में मंगाना चाहिए। मतलब सोच लो मेरा साल में 360 यूनिट खर्चा हो रहा है। 360 यूनिट का मतलब क्या है, सोच लो एनुअल कंजम्पशन 360, क्वांटिटी ले लो 360। सोचो मुझे क्वार्टरली कंजप्शन बा मंथली कंजप्शन कितना है, क्वार्टरली नहीं लो मंथली ले लो। मंथली कंजप्शन मेरा कितना है, सोच लो 60 यूनिट का 60 यूनिट, तो मुझे कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा 360 डिवाइडेड बाय 60, तो मतलब मुझे 60 बार ये जो मंथली कंजप्शन है ना हम इसको क्या बोलेंगे, एवरेज मंथली कंजप्शन। मतलब जनरली मंथ में मुझे 60 यूनिट चाहिए, एनुअली 360 चाहता है सीजनल फैक्टर को इंक्लूड करके, तो मुझे कितना बार मंगाना पड़ेगा, 6 बार मंगाना पड़ेगा। सॉरी यहाँ 60 into 6 360, तो मुझे कितना बार मंगाना पड़ेगा, 6 बार रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा। ये सब चीज हम कहाँ में डिस्कशन करेंगे, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ओके, माय नेक्स्ट पॉइंट इज ABC analysis. What is ABC analysis? Always better control। क्या होता है always better control? सोच लो मेरे पास एक चीज है, 10 रुपए का चीज है, उसको अच्छे से रखने के लिए मुझे 15 रुपए का सिक्योरिटी खर्चा करना, ये सही नहीं है भाई। क्योंकि सुनो अगर मेरा 10 रुपए का प्रोडक्ट है उसको 1% या 2% या 10% के हिसाब से ज्यादा मैं 1 रुपया का खर्चा कर पाऊंगा उसके सिक्योरिटी के लिए।
₹10 का चीज के लिए मैं एक सिक्योरिटी गार्ड लगा के उसको 300 पर मंथ दूंगा, ये तो प्रॉब्लम में समझ में आ रहा है। क्योंकि मेरा जितना प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसके हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मेरा कॉस्ट बहुत कम है तो कंट्रोल टेक्निक बहुत कम करो, मेरा कॉस्ट बहुत ज्यादा है कंट्रोल टेक्निक बहुत ज्यादा अप्लाई करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो वी हैव टू स्टडी ABC analysis, always better control analysis. Next point is level setting. क्या होता है लेवल सेटिंग? लेवल सेटिंग का मतलब होता है the all inventory must be management by some levels, that is minimum आपको इतना रखना पड़ेगा। रीऑर्डर मतलब अगर लेवल मेरा इतना आ गया रॉ मटेरियल का, हमको क्या करना पड़ेगा, उतने में ऑर्डर देना पड़ेगा। मैक्सिमम इतना रखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम इससे ज्यादा मैं रखूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और एक गोल्डन रेट में लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से मुझे मैक्सिमम इतना रखना पड़ेगा। डेंजर स्टॉक लेवल मतलब ये बोल रहा है कि मेरा स्टॉक अगर इतना आ गया तो मुझे और ऑर्डर दे लेना पड़ेगा, लोकल मार्केट के जाकर फटाफट परचेज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज कहां आएगा, लेवल्स पे आएगा। तो कितना चीज आएगा, जनरली 5 टाइप ऑफ लेवल सेटिंग इज देयर। One is maximum level, next one is minimum level, next one is reordering level, next one is average stock level, last point is डेंजर लेवल। ये सब चीज हम कहाँ में पढ़ेंगे, लेवल सेटिंग में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लेवल सेटिंग में हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना मेंटेन करना पड़ेगा स्टॉक, मिनिमम स्टॉक कितना मेंटेन करना पड़ेगा, एवरेज कितना मेंटेन करना पड़ेगा, रीऑर्डरिंग लेवल मतलब कौन से लेवल में आ गया तो मुझे फ्रेश ऑर्डर देना पड़ेगा। लास्ट वन इज डेंजर लेवल। डेंजर लेवल में मुझे क्या करना पड़ेगा, वी डू नॉट हैव टू रिक्वायर फ्रेश ऑर्डर, we have to purchase from local market। क्योंकि अगर सोच लो मैं अगर एक चीज आएगा, इधर हम लोग पढ़ेंगे लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम गैप बिटवीन ऑर्डरिंग एंड कॉस्ट और ऑर्डरिंग एंड इन्वेंटरी एंड रिसीविंग एंड इन्वेंटरी। मैंने ऑर्डर किया 5 फरवरी में, मुझे जब रिसीव हो रहा है वो हो गया 10 फरवरी। लीड टाइम इज 5 डेज। समझ में आ रहा है? मैंने ऑर्डर दूंगा, फिर मैं ऑर्डर रिसीव करने से जो टाइम आएगा इसको हम बोलते हैं क्या, लीड टाइम। सो इन केस ऑफ डेंजर लेवल आई डू नॉट वेट फॉर दिस, मतलब आई डू नॉट वेट फॉर 5 डेज। मैं 5 डेज तक वेट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने वेट करवाया तो मेरा स्टॉक बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए डेंजर लेवल क्या कर रहा है, इमरजेंसी परचेज में लोकल मार्केट से परचेज कर रहा है। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज, पॉइंट नंबर 6 इज ABC हो गया। नेक्स्ट वन इज VD एनालिसिस। व्हाट इज VD? वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। इस चीज में हम लोग को अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज VD एनालिसिस इज नॉट एन स्टॉक टेक्निक, it is an inventory technique, because somehow material control technique means it is an inventory control technique। इसका मतलब क्या है, inventory always not include tools but somehow it includes tools। सोच लो अगर मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टॉक मेंटेन कर रहा हूं, मेरा बिजनेस किस चीज का है, मार्केट का है, मैं एकदम पूरा ऑल इंडिया का होलसेलर मार्केट सेलर हूं, तो तभी मेरे पास मार्केट का स्टॉक है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो छोटा मोटा टूल है, जैसे हम सोच लो एक स्क्रू ड्राइवर, फ्यूज वायर, ये सब मैं परचेज करके रखता हूं मेरे पास। क्यों रखता हूं पता है क्या? अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी परचेज मेरा करंट का फ्यूज चला गया तो मैं फालतू में इधर बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। सो द एसेंशियल एलिमेंट्स टू कंडक्ट इन बिजनेस, जैसे हम लोग पढ़े थे, वन इज बिजनेस, सेकंड वन इज एंसिलरी टू डू बिजनेस। एंसिलरी टू डू बिजनेस का मतलब क्या होता है कि हमारे जो बिजनेस को चलाने के लिए मुझे कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उस सपोर्ट सिस्टम को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टॉक में मेंटेन करना पड़ेगा। तो दिस इज नोन एज टूल्स। टूल्स का मतलब समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं?
तो उस टाइप का जो टूल्स भी है मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करवा के रखना पड़ेगा। अगर ये चीज मैंने मेंटेन नहीं करवाया तो मेरा बिजनेस का फ्लो बंद हो सकता है, प्रोडक्शन बंद हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहा है somehow we have to maintain some tools in our business so that it will be very normal or it will be continuous in our flow of business, हमारा प्रोडक्शन और बिजनेस अच्छे से चलते रहे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज FND एनालिसिस। FND का मतलब क्या होता है? FND इधर हम लोग को मेन क्या पढ़ना पड़ेगा, फास्ट नॉर्मल डेट मूविंग अप स्टॉक्स। फर्स्ट वन इज फास्ट नॉर्मल डेट। ये क्या बोल रहा है? फास्ट मूविंग अप गुड्स मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूं, सोच लो मैं मार्कर का बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास 3 मार्कर है, वन इज ब्लैक, ब्लू एंड द इज इन ग्रीन। ले लो ये जो ब्लू वाला मार्कर है, ये ब्लू वाला मार्कर मेरा बिजनेस में दौड़ता है, मतलब जो भी आदमी आता है 100 से 50% लोग मुझे यही मार्कर मांगते हैं। तो दिस वन इज नोन एज फास्ट गुड्स, ये ज्यादा चलेगा मार्केट में, फास्ट ये बोलते हैं। ब्लैक जो है नॉर्मली 20-30 लोग मुझे मांगते हैं, इसलिए नॉर्मल। डेड मतलब ग्रीन वाला बहुत कम लोग मांगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेड। तो ये जो 3 चीज हो गया, उसको कितना स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, कैसे स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, कौन सा स्टॉक को मुझे ज्यादा रखना पड़ेगा, किसमें मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल खर्चा करना पड़ेगा, ये सब चीज हम लोग कहां पढ़ेंगे? FND एनालिसिस में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? फटाफट ये चीज नोट करवाओ एक बार। ओके और एक सिस्टम है, इंपॉर्टेंट सिस्टम हम लोग देखते हैं, JIT सिस्टम। व्हाट इज JIT सिस्टम? इट इज जस्ट इन टाइम, मतलब उनको जब जरूरत है तभी परचेज करवाना पड़ेगा, फालतू में लाके गोदाम में स्टॉक मेंटेन मत करो। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे आज के क्लास में, देखो फिर से बता दे रहा हूं। EOQ मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट विल बी डिस्कस्ड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। द क्वांटिटी which order should be economic for us, we will order that much of quantity. This is decided by EOQ. Perpetual inventory system में हम क्या पढ़ेंगे? What is incurred, what is stored ledger, how the flow of business will be, how the flow of inventory will be maintained. In case of inventory turnover ratio, how much turnover must be maintained, or how many times of purchase will be done, or what is the lead time between different purchase. एक परचेज मैंने करवाया, फिर दूसरा परचेज के लिए मेरे पास कितना टाइम गैप है, ये किसमें पता चलेगा? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में पता चलेगा। नेक्स्ट वन इज एबीसी एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। मुझे कंट्रोल कैसे टेक्निक करना पड़ेगा, कितना रुपया का कॉस्ट को कितना कंट्रोल देना पड़ेगा, ए टाइप प्रोडक्ट क्या होता है, बी टाइप प्रोडक्ट क्या होता है, सी टाइप प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब चीज भी हम लोग किस तरह डिस्कशन करेंगे एबीसी एनालिसिस। लेवल सेटिंग में क्या करना पड़ेगा? इन्वेंटरी मस्ट बी डिसाइडेड इन 5 लेवल्स, maximum, minimum, reorder, average stock, danger. Last point, next one is VD analysis. मैंने पहले ही बोला, VD analysis is not an inventory stock technique, it is a tool technique. क्यों मेंटेन करवाना पड़ेगा ये हम बाद में पढ़ेंगे। Next one is FN analysis, fast moving, non moving, dead moving goods. Last one is JIT system, just in time system. पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं JIT system, फिर आएगा 1 नंबर में EOQ। जैसे आप लोग को अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए, समझ में आएगा, उस टाइप में डिस्कशन करता हूं। सो द फर्स्ट टेक्निक इज नाइन JIT सिस्टम। फर्स्ट इज JIT सिस्टम। ये सब चीज ना, इसमें से 2-3 शॉर्ट नोट्स आपको पूछेगा।
फीफो लिपो जो मैंने पढ़ा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, उसका प्रॉब्लम नहीं तो ये जब हम छोटा छोटा चीज पढ़ रहे हैं उससे से थ्योरी पक्का हो जाएगा। थोड़ा इंटरेस्ट देके एक बार ध्यान रख सुनो, याद रह जाएगा। जेआईटी सिस्टम, इट स्टैंड्स फॉर just in time. First point, JIT system stands for just in time. This technique of material control says that we do not have to, क्या बोल रहा है, this techniques of material control मतलब JIT system says that we do not have to maintain any type of stock. We will order quickly as per our requirement for, क्यों ऐसा कर रहा है जीएसटी सिस्टम? पहले देखो क्या बोल रहा है, दिस टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल, इसका मतलब है ये मटेरियल कंट्रोल टेक्निक है, सेज दैट we do not have to maintain any type of stock. ये बोल रहा है हमको कौन सा भी स्टॉक मेंटेन करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? We will order quickly as per our requirement. मुझे जब चाहिए तब मैं ऑर्डर दूंगा, क्विक ऑर्डर दूंगा। because to decrease the storage cost. समझ में आ रहा है क्या क्या है? और हम इसको बोल सकते हैं कैरिंग कॉस्ट। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? मेरा एक प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आ जाता है। जनरली 20 to 25% of the cost of material is on storage cost or increasing because of storage cost. That's why we have to decrease or minimize the storage cost so that my cost of material will be decreased. क्या बोल रहा है ये फिर से देखो, storage cost include rent of godown, all godown expenses, expenses of security. Next one is handling cost. अच्छा से देखो, ये बोल रहा है स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड्स रेंट ऑफ गोडाउन एक्सपेंसेस, मतलब मैं जो गोदाम को रेंट में लूंगा उसका एक्सपेंसेस होगा। ऑल गोडाउन एक्सपेंसेस मतलब एनी वाटर, एनी फ्यूल, एनी इलेक्ट्रिसिटी, एनी अदर एक्सपेंसेस, ऑल आर रिलेटेड टू गोदाम विल आल्सो इंक्लूड इन दैट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस ऑफ सिक्योरिटी, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टॉक मेंटेन के लिए एक सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, वो कितना स्टॉक मेंटेन कर रहा है, क्या कर रहा है, सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है हैंडलिंग कॉस्ट। मैंने बोला था हैंडलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है रे, हमको बार-बार पहले मतलब सोच लो, एक व्हीकल में मेरा रॉ मटेरियल है, उसको लेके पहले क्या करो, स्टोर में रखो, गोदाम में रखो, गोदाम से निकाल के फैक्ट्री तक लो, फैक्ट्री में फिर प्रोसेसिंग करके फिर से और कहीं प्रोसेस तक लो, फिर जो लेबर लोग होंगे वो फिर से उतारेंगे, फिर गोडाउन में रखेंगे, गोडाउन से फिर से गाड़ी को लोड करेंगे, फिर फैक्ट्री में अनलोड करेंगे, फिर प्रोसेसिंग करके उसको लेके फिर से अनलोड करेंगे। मतलब ये पूरा बहुत खर्चा हो जाता है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करवाना पड़ेगा। तो ये जेआईटी सिस्टम क्या बोल रहा है कि हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज को जीरो करवाने के लिए हमको जेआईटी सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम लोग जेआईटी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तभी हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट इसका लिमिटेशंस क्या है अभी देखते हैं। इट इग्नोर्स द
कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये ओनली किसमें फोकस कर रहा है, कैरिंग कॉस्ट में फोकस कर रहा है। ये अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट का चीज भूल गया भाई। तूने जब ऑर्डर करता है बार बार एक ही चीज ऑर्डर करने के लिए तुझे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, ज्यादा टेलीफोन एक्सपेंसेस होगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब इट इज नॉट अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। दिस परचेज इज रिलेटेड टू बिजनेस, so that every business transactions must make by a contract, तो मुझे बार-बार कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो जेआईटी सिस्टम क्या किया, ये जो सिस्टम था इग्नोर कर दिया। किसको इग्नोर कर दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट को इग्नोर कर दिया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, ये जो टेक्निक है ना, कभी हो सकता है पता है क्या, if the raw material is available, properly available in local market, point number 1, or point number 2, the supplier is as much as good than enough। इसका मतलब हो गया कि सोच लो, मैं सोच रहा हूँ कुछ, इधर मेरा रेस्टोरेंट है, मैं खाना बनाने का सोच रहा हूँ, इधर लोकल मार्केट में पनीर नहीं मिल रहा है, मैं सोचा था कि इधर से 15 मिनट का रास्ता होगा, उधर से पनीर रिसीव कर पाऊंगा मैं बैठ के उसको कॉल कर रहा हूँ, फोन मेरा पिकअप नहीं कर रहा है, तो मेरा कस्टमर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए, भाई मेरा नॉर्मल एग्जांपल था, सोच लो बड़ा मेरा रेस्टोरेंट है और मेरा कोई बड़ा वाला पनीर का शॉप है, मैं क्या करता हूँ, मेंटेन नहीं करवाता हूँ, इधर रहता हूँ, ऑर्डर आया फोन करता हूँ, तू ला के दे, ये इसको देता है, मेंटेन कमीशन खाता हूँ, इसके बीच में जो कमीशन है उसको मैं लेता हूँ। तो इसलिए क्या बोल रहा है कि ये जो चीज में अगर मेरा सप्लायर अच्छा नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। The flow of my business will be decreased और the production continuity level will be decreased। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए क्या बोल रहा है, it ignores the concept of ordering cost, ordering cost का भूल गया। Next one is JIT system will may apply, मैं इधर क्या लिख रहा हूँ अच्छे से देखो, JIT system is applied, मैंने नहीं लिखा, JIT system may apply, मतलब हमारा ज्यादा रिस्क रहता है इसमें, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा केस में अप्लाई कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 1 इज व्हेन द गुड्स इज अवेलेबल इन लोकल मार्केट। अगर ये गुड्स मेरा लोकल मार्केट में अवेलेबल है तभी हम लोग जेआईटी सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, इट मे अप्लाई, मतलब हम सोच सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज इफ माय सप्लायर इज गुड इनफ, अगर मेरा सप्लायर बहुत अच्छा है तभी मैं क्या कर पाऊंगा, जेआईटी सिस्टम फॉलो कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है? फटाफट एक बार बोलता हूं, अच्छे से देखो, सुनो। ये क्वेश्चन में जनरली 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं। तुम जब एग्जाम में अपेयर करोगे, जेआईटी सिस्टम पूछ रहा होगा, तुम लिख दोगे जेआईटी सिस्टम स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम, जब तक हमको रॉ मटेरियल चाहिए तभी ऑर्डर देना पड़ेगा। 2 मार्क नहीं मिलेगा, 3 मार्क नहीं मिलेगा। अगर ये वाला आंसर आप लोग इसे अच्छे से लिखते हो तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, भाई इसको इतना अच्छे से मतलब लिखने का, पढ़ने का मन है। समझ में आ रहा है? तो आंसर एक ही आंसर था, आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? थोड़ा अच्छे से मेंशन करो, क्योंकि देखो मैंने जब ये सिस्टम बोला था आपको भी ये सब चीज याद है, अच्छे से पता है, बस लिख नहीं पा रहे ड्यू टू नॉट प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, जेआईटी सिस्टम इट स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम। दिस टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल, मतलब जेआईटी सिस्टम इज अ टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल, says that we do not have to maintain any type of stock, any type of stock, हमको किसी का भी स्टॉक मेंटेन करना नहीं चाहिए। We will order quickly as per our requirement, मुझे जब चाहिए तभी मैं ऑर्डर करूंगा। And because to decrease the storage cost और carrying cost, मुझे क्या करना है, स्टोरेज कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को कम करवाना है। समझ में आ रहा है? और एक चीज, हाँ, स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड्स रेंट ऑफ गुडन, all goods expenses, any goods expenses is there, it will be increase my carrying cost। सुनो, तुम बोलोगे सर ये 4 चीज में क्या होगा, ये सोच लो, ये 4 चीज मटेरियल के ऊपर आ गया, मटेरियल 10 रुपए है, ये 4 चीज पर यूनिट मटेरियल 4 रुपीस हो गया, तो भाई मेरा मटेरियल का कॉस्ट 14 रुपीस हो गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने बोला था क्या,
the amount of expenses you save in cost will increase your profit or will earn your profit. तुम इधर जितना बचाओगे उधर प्रॉफिट में उतना कमाओगे। तो ये चीज आपने कंट्रोल नहीं करवाया तो तुमने कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया, तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? तो इसीलिए क्या बोल रहा है, ऑल दिस एक्सपेंसेस मस्ट बी मिनिमाइज्ड टू गेट इन प्रॉपर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सो दैट माय प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ कांस्टेंट ऑफ माय सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहा है, स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड एक्सपेंसेस, और एक मैंने पॉइंट छोड़ दिया, एनी नॉर्मल लॉस। क्योंकि देखो अगर मैं इतना हैंडलिंग कर रहा हूं, मतलब यहां से लाऊंगा उधर रखूंगा, उधर से लाऊंगा उधर रखूंगा, उधर से लाके आखिरी तक लूंगा, ये बार बार एक चीज को उठाओ रखो में नॉर्मल लॉस में इंक्लूड होता है। सो ये नॉर्मल लॉस भी सोच लो 5% का है, तो 500 का गुड्स में मेरा 5% मतलब 25 रुपीस का नॉर्मल लॉस आ गया। नॉर्मल लॉस मुझे क्या करना पड़ेगा, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे, नॉर्मल लॉस मस्ट बी बर्न बाय गुड यूनिट्स, तो गुड यूनिट का प्राइस बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैंने जो 25 रुपीस का सोच लो मैंने 100 मंगाया था, 100 गुड्स मंगाया था, उसका कॉस्ट था 50 रुपीस, 5% का 100 यूनिट्स एट द रेट ₹5, एट द रेट ₹5, मतलब टोटल कॉस्ट मेरा हो गया 500, 5% का नॉर्मल लॉस 25, 500 पे 25 कितना हो गया, ये हो गया 475। अभी जो 100 यूनिट का कॉस्ट है ये 5 रुपया होता था, 475 का सॉरी बढ़ गया ना भाई, ये कितना हो गया 525, ये 25 को 500 से एडजस्ट करवाना पड़ेगा, तो 525 हो गया, 100 यूनिट डिवाइडेड बाय 100, तो मतलब 1 यूनिट 25 रुपीस का, मतलब 25 पैसा का कॉस्ट बढ़ गया। अच्छा सुनो, 25 रुपीस का लॉस हुआ, so this loss will be borne by good units, तो 500 plus 25 525 हो गया, 100 यूनिट का आउटपुट है, 525 डिवाइडेड बाय 100, एक प्रोडक्ट में 0.25 का चीज बढ़ रहा है, 0.25 का लॉस बढ़ रहा है। तो इसीलिए क्या बोल रहा है, ये सब 5 लॉस को हमको मिनिमाइज करवाना है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जेआरटी सिस्टम फॉलो करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका लिमिटेशंस क्या क्या है, फर्स्ट वन इज, इसको हम बोल सकते हैं लिमिटेशंस, it ignores the concept of modeling cost, ये ओनली किसमें फोकस कर रहा है, कैरिंग कॉस्ट में फोकस कर रहा है। इसने क्या किया, ऑर्डरिंग कॉस्ट को एकदम छोड़ दिया, मतलब डिसाइड ही नहीं कर पाया ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में। नेक्स्ट वन इज जेआरटी सिस्टम विल मे अप्लाई, आई एम नॉट सेइंग दैट जेआरटी सिस्टम विल अप्लाई, मे का मतलब ऑप्शनल होता है, अगर तुम्हारे पास ये दो चीज अच्छे से है तो तभी तुम क्या कर पाओगे, इसको कंट्रोल कर पाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Is that clear? Next first one क्या था, when the goods is available in your local market, goods लिख लो, नहीं तो raw material लिख लो, हाँ, when the raw material is available in our local market, point number 2 is it may supply goods is enough, अगर supply मेरा अच्छा है तब मैं जेआरटी सिस्टम फॉलो कर सकता हूँ। Is that clear? फटाफट एक बार ओवरलुक करो, नोट आउट कर लिए सब, ओके नोट आउट कर लिया, नहीं तो थोड़ा पॉज करके वीडियो को आप नोट आउट कर सकते हैं। इसमें से मैंने क्या बोला, इसने किसको फोकस किया, कैरिंग कॉस्ट को, किसको छोड़ दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट को। अगर हम अभी नेक्स्ट जो फंडामेंटल चीज पढ़ेंगे ईओक्यू, ये बोल रहा है भाई तू अगर ओनली कैरिंग कॉस्ट के पीछे भागेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, तू ऑर्डरिंग कॉस्ट के पीछे भागेगा कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए दोनों का एक मुझे बैलेंस करवाना पड़ेगा। So balance is known as what? EOQ method. Next class we will clearly discuss about EOQ method. JIT सिस्टम को अच्छे से एक बार ओवरलुक कर लो, पढ़ लो, फिर बात खत्म, तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? Is that clear? Okay. Next class हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, EOQ बारे में डिस्कशन करेंगे। Thank you very much.